بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو بہتر لائف گزارنے کے لیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک انسان کی خود اعتمادی ہے۔ ایک انسان کے پاس بہت کچھ وسائل ہوں اور اللہ کا دیا ہوا ٹیلنٹ بھی ہو، لیکن خود اعتمادی کا فقدان ہو تو وہ انسان پھر وہ لوگوں اور لوگوں کی رائے کے رحم و کرم پہ رہتا ہے اور بالکل ہی انسٹیبل، غیر متوازن اور متزلزل سا رہتا ہے۔ جتنے بھی ٹرینرز ہیں، جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں، وہ ایک بات پہ متفق ہیں کہ سیلف کانفیڈنس بے پناہ اہمیت کی حامل چیز ہے، صفت ہے، کوالٹی ہے۔ آج ہم نے اس پہ بات کرنا ضروری سمجھا اور یہ سیلف کانفیڈنس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے، یہاں سے ابتدا کرتے ہیں۔ سیلف کانفیڈنس از ٹرسٹنگ یور سیلف، یور ایبلٹیز اینڈ یور ججمنٹ۔ سیلف کانفیڈنس جو ہے اپنے آپ کے اوپر، اپنی صلاحیتوں کے اوپر اور اپنی ججمنٹ کے اوپر اعتبار اور بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی اینڈ چیلنج نیگیٹو سیلف ٹاک۔ یہ جو سیلف ٹاک ہے، اپنے آپ سے باتیں کرنا، ہم ساری کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ سیلف ٹاک کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، بعض لوگ تو منہ سے بول رہے ہوتے ہیں جو کوئی اور نہیں سن رہا ہوتا، تو بعض لوگ اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک انسان کا نیگیٹو سیلف ٹاک ہے اور اس نیگیٹو سیلف ٹاک کی شناخت کرنا اس لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ ہمارے سیلف کانفیڈنس کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہے۔ جب ہم خود کو بتاتے ہیں کہ میں نااہل ہوں، میں ناکام ہو جاؤں گا، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، میں اچھی رائے نہیں دے سکتا، میں اچھی ججمنٹ نہیں دے سکتا، تو یہ ساری باتیں ایک انسان کے سیلف کانفیڈنس کی جڑوں کو کاٹنے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی گفتگو کا جو پہلا نقطہ عرض کیا وہ ہے نیگیٹو سیلف ٹاک کا، اور ریکگنائز اینڈ ریپلیس کریٹیکل انر وائسز ود پازیٹیو ایفرمیشنز۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اوپر تنقید کرتے رہیں، بے رحمانہ تنقید کرتے رہیں، اس کو ہٹا کر اپنے آپ کو پازیٹیو ایفرمیشنز جو ہیں، یہ پازیٹیو ایفرمیشنز کیا ہوتی ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو مہیا کرتے رہیں۔ پازیٹیو ایفرمیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو ریپیٹڈلی یہ بتاتا رہے کہ بھئی میں
एक अहल, कैपेबल, लायक, बेहतर और कामयाबी का मुस्तहिक इंसान हूं। मैं अपने अंदर सलाहियतें रखता हूं कि मैं जहां भी खड़ा हूं, मैं अपने अहदाफ और टारगेट सेट करके उस हिम्मत मूव करना शुरू कर दूं। मैं इस बात की सलाहियत और अहलियत रखता हूं। और हमें इधर उधर से कभी सुनने को, कभी पढ़ने को, कभी अपनी अकल में बहुत अच्छे मोटिवेटिंग अल्फाज और जुमले आते रहते हैं कि जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, जो हमें मजबूत बनाएं, स्ट्रेंथन करें। ऐसे अल्फाज और जुमलों को कलेक्ट करते रहें और फिर इनको एक दिन में कई कई बार इनको दोहराया करें, बोला करें और जोश और वल्वले के साथ बोला करें, ताकि वो बात हमारे ज़हन नशीन हो जाए, हमारे तहत शऊर के अंदर दाखिल हो जाए। तो ये है एक इंसान की पॉजिटिव एफर्मेशन जो हैं। और दूसरी बात कौन सी है? वो है, हमने पहली बात यह की कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को हटा के पॉजिटिव एफर्मेशन हमने प्रैक्टिस करनी है। दूसरा क्या है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। देखें, इंसान के अंदर कमजोरियां भी हैं और खूबियां भी हैं। अगर एक इंसान मुसलसल अपनी कमजोरियों पे ध्यान और तवज्जो रखता है, फोकस्ड रहता है, तो वो इंसान इरादे का और एतमाद का कमजोर से कमजोर तर होता चला जाता है। खुद को तनकीद का निशाना बनाता रहे तो कमजोर से कमजोर तर होता चला जाता है। और अगर वही इंसान अपनी खूबियों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करे, उनकी शनाख्त करे और फिर उन पे फोकस कर ले, फोकस्ड रहे, तो फिर क्या है कि इंसान मजबूत होता है, इंसान के अंदर खुद एतमादी आती है। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? ये काम हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि लिस्ट योर अकम्पलिशमेंट्स। एक इंसान की जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, एक इंसान की जो कह लें कि जो काम उसने निमटाए और किए हैं, उनकी इंसान फहरिस्त बनाए। और दूसरा क्या है कि और वो फहरिस्त बना के वो जो एक इंसान की अकम्पलिशमेंट्स हैं, एक इंसान की जो उसकी कामयाबियां हैं, उसकी लाई हुई इम्प्रूवमेंट्स हैं, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी फहरिस्त बना के उनको याद करता रहे, ताकि इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा हो। और दूसरा है सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। बड़ी कामयाबी तो कभी कभार नसीब होती है, लेकिन छोटी कामयाबियां इंसान को मिलती रहती हैं। और ये जो छोटी कामयाबियां हैं, अगर हम इसको सेलिब्रेट करें, अगर हम इस पे अपने आप को अप्रिशिएट करते रहें, शाबाशी देते रहें, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान मजबूत बनता है। और तीसरा क्या है कि लीवरेज योर स्किल्स। जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारे टैलेंट्स हैं, हम उनसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें। तो ये गोया कि एक काम ये है। एक काम तो हमने अर्ज किया कि जी नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिमूव करके पॉजिटिव एफर्मेशन जो हैं उनको हम लोग करते रहें। और दूसरा क्या है कि अपनी खूबियों पे तवज्जो मरकूज कर लें। और तीसरी जो बात है वो ये है कि इंसान क्या करे कि डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। एक इंसान अपना ग्रोथ माइंडसेट जो है वो डेवलप करे। अब ये ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट ये चीज है, एम्ब्रेस चैलेंजेस, कि जो मुश्किलात, रुकावटें, परेशानियां जिनका आपको सामना है, आप उन्हें खुश दिली से हम लोग कबूल कर लें कि जी हाँ, मैं इनसे निपटूंगा, मैं इनको अच्छी तरह मैनेज और हैंडल करूंगा और इस वजह से मेरे एतमाद के अंदर बहुत इजाफा होगा। तो भाई एक बात यह है
कि एम्ब्रेस चैलेंजेस, और दूसरी बात क्या है कि लर्न फ्रॉम फेलियर्स, जो नाकामियां हुई उनसे हम सबक सीखें। और तीसरा क्या है कि सेट अचीवेबल गोल्स, कि जो ऐसे अहदाफ, टारगेट और गोल सेट करें कि जो अटेनेबल हैं, जो अचीवेबल हैं, जो रियलिस्टिक हैं, ताकि जब हम उनको अचीव करेंगे, जब हम उस सिमत में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट दिखाएंगे, तो हमारे इत्मीनान के अंदर इजाफा हो। अगला जो इसके अगला काम करने वाला क्या है कि प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपना ख्याल खुद रखिएगा, अपना ख्याल खुद रखें। कैसे अपना ख्याल रखेंगे? प्रायोरिटाइज स्लीप एंड एक्सरसाइज, कि नींद पूरी करें और एक्सरसाइज करें। नींद 7 से 8 घंटों की जो नींद है, हम में से हर एक इंसान की जरूरत है। हर एक रात को हमें 7 या 8 घंटों की नींद दरकार होती है। दूसरा क्या है कि हेल्दी न्यूट्रिशन। अब हम सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं। सेल्फ केयर में पहला काम 7 से 8 घंटों की रोजाना नींद है, और दूसरा काम हेल्दी न्यूट्रिशन है कि हम एक सेहतमंदाना कह लें कि जो खुराक है वो खाएं। और तीसरी बात क्या है? रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं, हमें रिलैक्स करने वाली जो टेक्निक्स हैं, जैसे मराकबा है, जैसे गहरे सांस की मश्क है, तो ये हम किया करें। तो ये 3 चीजें मिलाकर सेल्फ केयर का बंदोबस्त हो जाता है। हम अपना ख्याल रख पाएंगे इन 3 चीजों की बदौलत। और अगला क्या है कि बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, कि हमें मुस्बत ताल्लुकात जो है वो बनाने हैं। कैसे बनेंगे? सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल हु एनकरेज एंड बिलीव इन यू, कि हम ऐसे अफराद की तलाश में रहा करें, उनसे मुतारफ हों और उनसे अपना ताल्लुक बनाने और चलाने की कोशिश करें, कि जो लोग मुस्बत लोग हैं, टॉक्सिक लोगों से दूर होते चले जाएं, उनकी शनाख्त करें, उनसे दूर होते चले जाएं, और जो मुस्बत लोग हैं, जो सपोर्टिव लोग हैं, उनकी शनाख्त करें, उनसे मुतारफ हों, उनसे ताल्लुक बनाने की कोशिश करें, उनके करीब होते चले जाएं। तो ये है कि बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। और इसमें आगे हमें क्या करना है कि हमें कुछ एक्शंस लेने हैं। और कौन से एक्शंस हैं? देखिए, स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। हमें पहला काम ये करना है कि हमारा जो कंफर्ट जोन है, कि वो ऐसे मामूलात कि जो हमें आसान लगते हैं, हम उनसे थोड़ा बाहर निकल के थोड़े मुश्किल किस्म के जो मामूलात हैं, जो रूटीन्स हैं, हम उनको गोया कि थोड़ा टफ किस्म का जो काम है, जो आदत हैं, जो रूटीन्स हैं, वो अपनाएं। और दूसरा क्या है कि टेक कैलकुलेटेड रिस्क, कि भाई हम लोगों ने कहते हैं कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो डेवलप भी नहीं होंगे। तो कहते हैं कि देखें, हमें अंधा रिस्क नहीं लेना, हमें गैम्बलिंग नहीं करनी, हमें जुआ नहीं खेलना, हमें कह लें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। यानी थोड़ा रिस्क हो और हमें पता हो कि मैं अगर इसमें खुदा न खास्ता नाकाम होता हूं तो मेरा लॉस कितना है, मैं उस लॉस को बेयर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एक। और दूसरा ये कि तैयारी करके रिस्क लें। तो ये हो गया टेक कैलकुलेटेड रिस्क। और तीसरी बात कौन सी है? तीसरी है असर्ट योरसेल्फ, कि आप इसरार करें, मुस्सिर हो जाएं, आप स्टैंड लें कि जी हां, मैं एक कैपेबल इंसान हूं, मैं एक कैपेबल इंसान हूं, मैं लायक इंसान हूं, मैं ये कर लूंगा, यस आई कैन डू दैट। आगे कुछ डेली की एफर्मेशंस हैं, जो हमें एफर्मेशंस की सबसे पहले बात हुई थी कि भाई आप नेगेटिव जो सेल्फ टॉक है, आप उससे जान छुड़ाएं और पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। अब पॉजिटिव एफर्मेशंस हम कुछ एक नमूने के तौर पे 1-2 पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको देते हैं, जो हमने रोजाना की बुनियाद पे, बल्कि एक दिन में कई बार जिनको हमने रिपीट करना है। और उसमें से एक ये है, आई एम कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट, आई एम कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। मैं एक लायक इंसान हूं और मैं एक कॉम्पिटेंट इंसान हूं। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं अपने पे भरोसा करने वाला इंसान हूं।
आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, कि कामयाबी और खुशी मेरा उस पे पूरा हक है। याद रखिए ये दो तीन है, लेकिन ये बड़ी आला, बड़ी जामे हैं। मैं रिपीट करता हूं, आई एम कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। अब ये एक पॉजिटिव एफर्मेशन ये है कि जी हां, मैं लायक फाइक इंसान हूं, मैं कैपेबल इंसान हूं, मैं अहलियत रखने वाला इंसान हूं। दूसरा, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप पे भरोसा करता हूं। तीसरा, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, कि मैं कामयाबी और खुशी का बिल्कुल हकदार हूं। फिर ये तीन बड़ी याद रख लें, बड़ी सिंपल हैं, बड़ी जामे हैं, बड़ी मुफीद हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बेपनाह मदद फराहम करेंगी। रिमेंबर, सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोज विद टाइम, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। ये हमारी जो खुद एतमादी है ये ग्रो करती है वक्त गुजरने के साथ साथ, सब्र तहम्मुल से और प्रैक्टिस करने से। किस चीज की प्रैक्टिस करें? जो बातें ऊपर अर्ज की हैं उनकी प्रैक्टिस करें। तो ये आज का हमारा लेसन था कि हम लोग कैसे अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपनी जो खुद एतमादी का लेवल है, उसे हम कैसे बहुत बुलंद कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।